just 25 years back, there was only one Doordarshan, and we had only half an hour of news. World War III is coming. This has been quoted from like almost decades now कि अब वर्ल्ड वॉर कुछ भी झगड़ा होता है लोग बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है या हो जाएगा अभी. You have a higher IQ, you should do well in investments. But that's not the case. IQ is just one part of it. Sometime कि डोनाल्ड ट्रम्प शायद आ जाएंगे, और सबको पता था कि टैरिफ्स भी आ जाएगा थोड़ा बहुत. उन्होंने अपने नेबर्स को नहीं छोड़ा, यूरोप को नहीं छोड़ा, जापान, साउथ कोरिया, उनके क्लोजेस्ट अलाइज उनको नहीं छोड़ा. इंडिया के साथ भी थॉट थिंग्स वर गुड, एंड वहां पे भी एंजाइटी नर्वसनेस बहुत हुई. और जब रिटायर होंगे, a lot of people also don't realize that we are living in the modern world. Hello all, a warm welcome to Samarth Podcast. So today in this chaotic world, where a lot of news regarding AI or the geopolitical situations, so every investor is confused with what is happening with their portfolios, what to do next. And so today we have got an excellent opportunity where we have been joined with Head of Trainings of HDFC Mutual Fund, Mr. Amit Grover. So we are very glad to have you, sir, on this podcast. Thank you, Biren. And thank you for joining us. And we need your insights to guide our investors in this journey. Sure, looking forward. Yeah. So like as I said, sir, today there is noise, So now earlier the fear was only of AI. Right. Now the additional twist of geopolitical tensions, US-Iran war. Right. And in all this chaos, investors are losing patience or they are becoming restless. Right. So how do you differentiate what is from the noise, from overall noise, and the investor insights what they should take from everything? Right. So how the investor should behave in this kind of market? Right. So we are living in a very interesting world. Just to give you perspective, just 25 years back, there was only one Doordarshan, and we had only half an hour of news. A very simple news of what's happening a little bit in the country, and maybe some information about what's happening abroad. We live in the world today where there is 24/7 news. There are more than 500 news channels, and there is perpetual breaking news happening somewhere. Mathematically, there are 200 plus countries in the world. There are more than 800 crore people out there. There is always going to be something happening somewhere. That's how the world is designed. And at the same time, we also have to understand the nature of the news. News by nature is only of three types. First, it's unique news which sells in the market. We all love unique, जिसको हम बोलते हैं चटपटी खबर. Second is bad news. By nature, there is nothing called as good news. सिर्फ खराब खबर just makes us aware about what's happening. And third is imaginary bad news. कि ऐसा हो सकता है. In fact, the word World War III is coming this has been quoted from like almost decades now कि अब वर्ल्ड वॉर कुछ भी झगड़ा होता है लोग बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है या हो जाएगा अभी. We are also living in a world where besides information, there is insane amount of misinformation which is happening. Correct. Now, with so many bad news and so much misinformation and shown on a continuous basis, what happens? It's very natural for everyone to be absolutely anxious and completely paranoid. Yeah. Okay? Because हमारा mind जब भी कोई नेगेटिव न्यूज सुनता है बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, और परपेचुअल इतनी नेगेटिव न्यूज सुन के तो माइंड बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा. एंड दैट्स द रीजन व्हाई पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर एब्सोल्युटली एंग्शियस बाय लिसनिंग टू द न्यूज. In fact, we always tell clients, if in case they want to be good, amazing investors, they need to have noise filters. Because today what seems so important to us, और वो छोटी न्यूज को माइक्रोस्कोप के साथ बड़ा करके हम इतना देख रहे हैं, just rewind back 5 years back या 6 साल पहले 2020 में कोविड हुआ था. At that time it felt as if it's the end of the world. फिर इंडिया और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, फिर लगा कि अरे ये क्या हो गया. And then we saw some credit crisis taking place. अगले ही साल again we thought the new year hopefully things will be bad, but actually 2021 actually had multiple waves of COVID. We also saw severe lockdown which happened in China, और उस समय headlines ये था
कि अगला प्रॉब्लम, अगला वर्ल्ड में रिसेशन चाइना की वजह से आएगा। Yes. 22 खत्म हो गया, 21 खत्म हो, 22 में एंटर हुए, हमें लगा कोविड चला गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट स्टार्टेड विद द रशिया यूक्रेन वॉर, Yeah. और सब ने बोला अरे ये क्या हो गया। फिर सडनली क्रिप्टो क्रैश हुआ, वर्ल्ड सॉ हाईएस्ट इन्फ्लेशन, 40 साल में इतना इन्फ्लेशन कभी नहीं देखा था पूरे वर्ल्ड में, 40 इयर्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखा। उसी साल आरबीआई ने 6 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, फेड ने एक ही साल में 11 बार रेट बढ़ाए, एंड पीपल आर सो एंशियस, कभी नहीं हुआ, एंड एवरीबडी वाज सो एंशियस अबाउट द होल स्टफ। 22 खत्म हो गया, 23 में एंटर हुए, फिर 23 में शुरू में हमने कोई कंपनीज के बारे में सुना कि इनके बारे में ग्लोबली रिपोर्ट्स थी, तो मार्केट घबरा गई उसके बारे में। एंड देन फिर न्यूज चलेगी यूएस में सिलिकॉन वैली बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जब रातों रात बंद हुए, पीपल थॉट बैंकिंग क्राइसिस हैव स्टार्टेड, एवरीबडी वाज पैनिकिंग एट दैट टाइम। एंड देन द न्यूज केम इनटू यूरोप, जहां पे यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स क्रेडिट स्विस went for bankruptcy, and people thought, oh god, again a big crisis. And then we had Israel Palestine conflict, और तब से वर्ल्ड वॉर 3 तो वापस तब भी अनाउंस कर दिया गया था। And 2024 we had so many elections in many countries across the world. इनफैक्ट कहते हैं कि रिकॉर्ड है 2024 में 80 देशों में इलेक्शन हुए, and every election was full of volatility. Even we had election in our country, और वहां पे भी थोड़ी मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से उस दिन घबरा गई थी। और जब साल खत्म हो रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प एंड यूएस इलेक्शन, वी मार्केट्स न्यू ओके टिल सम टाइम कि डोनाल्ड ट्रम्प शायद आ जाएंगे, और सबको पता था कि टैरिफ्स भी आ जाएगा थोड़ा बहुत। बट 2025 में वापस हमें न्यूज और एंजाइटी और नर्वसनेस आ गया, बिकॉज जो फॉर्मूला उन्होंने टैरिफ्स के लगाए, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने नेबर्स को नहीं छोड़ा, यूरोप को नहीं छोड़ा, जापान, साउथ कोरिया, उनके क्लोजेस्ट अलाइज, उनको नहीं छोड़ा। इंडिया के साथ वी थॉट थिंग्स वर गुड, एंड वहां पे भी एंजाइटी नर्वसनेस बहुत हुई। एंड देन नाउ वी नो देयर इज सम अमाउंट ऑफ सेटलमेंट, ओके, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ टैरिफ डील, और उनकी यूएस सुप्रीम ने भी कहा है कि मे बी दीज टैरिफ्स यू कैन नॉट पुट देम, और उस पर अभी फिलहाल होल्ड लगा हुआ है। और इस अनसर्टेनिटी के साथ एज वी एंटर 2026, लगा अब सब ठीक हो जाएगा। सडनली वी हर्ड द न्यूज ऑफ वेनेजुएला। साल शुरू होते ही वेनेजुएला की न्यूज इतनी बड़ी लग रही थी। आज 2 महीने हो गए बात को, किसी को याद भी नहीं कि वेनेजुएला में क्या हुआ था। एंड नाउ यस, व्हाट इज हैपनिंग from a life perspective, from a country perspective, obviously it's very saddening to see what's happened, but हमें ये भी समझना है that equity, we are investing into businesses. Okay, India is a large country, a country of almost 140 crore population. 140 crore population is equal to entire Europe, which is 70 crore, entire US, which is 30 crores, and entire South America, which is 40 crores. Yeah. We all know the India's growth story, and we have been experiencing it. Yes, like it's always been said, market in the short term works on sentiments. कभी sentiments अच्छे या खराब होते हैं, but in the long term, the driver of market is earnings. Fundamentally, India is a very strong economy. It's a growth economy. Earnings are doing very well from a long-term perspective. It is just that आज न्यूज की वजह से sentiments थोड़े से ups and downs लग रहे हैं, but to be a good investor, ideally सबसे important चीज है noise filters होना मेरे हिसाब से। Correct. So exactly. So continuing from that point, what we have also observed, there are many investors under our clients, whatever we say. So two set of clients have got equal knowledge, maybe equal information, because there is information overload, as we said, but they are equally intelligent also. Right. But the outcomes of their portfolios are drastically different. Right. So what is that reason? Like, what is that differentiating factors between those clients? Right. See, we have always been thinking that people who have got higher IQ, it's genuinely believed that if you have a higher IQ, you should do well in investments. Yeah. But that's not the case. IQ is just one part of it. Knowledge is just, information is just one part of the information. In fact, the biggest differentiator is actually EQ. Okay. Managing your behavior, managing your emotions. That plays a critical role in terms of how a person is able to achieve their financial goals. See, we have seen a couple of big mistakes what generally investors do, and unfortunately, we have seen these patterns getting repeated.
जैसे आपने बहुत पूछा कि ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हैं जो जनरली इन्वेस्टर्स हमेशा करते हैं, अक्सर करते हैं. द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट वी हैव सीन इन्वेस्टर्स डूइंग, द बिगेस्ट वन, दैट दे स्ट्रेट अवे जंप टू द क्वेश्चन कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, which actually is the second part of the puzzle. The first thing is कि मैं इन्वेस्ट करना क्यों चाहता हूं. Many people don't even have a defined financial goal. The first thing for a successful investment is actually sitting with an advisor or a distributor and actually doing a proper in-depth financial planning. Correct. Where you write down your goals, your short-term goal. You start with your bucket list because ख्वाहिशें तो हजारों होती हैं. Correct. Then you make it more realistic because ख्वाहिशें तो there is no limit to it. But then you become more realistic. You write your short-term goal, your medium-term goals, your long-term goals. We have seen people are extremely bad when it comes to thinking about their long-term goals. Not their mistake completely because a human brain is not designed to think beyond 5 years. उन्हें पता ही नहीं कि कभी ना कभी वो रिटायर होंगे. और जब रिटायर होंगे, a lot of people also don't realize that we are living in the modern world. Many people might have to retire at the age of 50, maybe in some cases 55. And thanks to medical science, many of us will live till the age of 80, 85, even 90. So imagine 30, 35 years of zero income life. It's like 30 years of weekend happening. हम सबको पता है weekend पे बहुत खर्चा होता है, but 30 साल का weekend चल रहा है. That's one. And we also know predominantly there will be no safety nets. ऐसा नहीं है कि कोई जिस कंपनी में काम किया वहां से पेंशन मिलने वाली है या सरकार से कोई पेंशन आने वाली है. तो जो इंसान खुद से प्लानिंग करेगा, they will be able to manage their retirement, or I would say the financial freedom for the later life. And also we know, हमें खुद भी दिख रहा है कि the cost of children's education is only increasing. वहाँ महंगाई भी बहुत है because inflation is very high. And at the same time, people's aspirations are also changing. Okay, जैसे आपने बोला AI की दुनिया है, आज AI है, पता नहीं कल क्या आएगा. The cost of education, the higher education is only going to rise. And today people also have aspirations कि हमारे बच्चे बाहर पढ़े, ऑस्ट्रेलिया पढ़े, यूरोप पढ़े, यूएस जाके पढ़े, कहीं भी पढ़े. That doesn't matter. But the bottom is उसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत है. पढ़ाई के अलावा today a lot of Indians are becoming entrepreneurs. If somebody wants to become an entrepreneur, उसके लिए एक सीड कैपिटल लगता है, कुछ पैसा लगता है. तो ideally if parents can also save some money for that, so that when the child, if in case उसको अपना बिजनेस शुरू करना है और एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स ही सपोर्ट कर देते हैं, तो बच्चे के लिए काफी अच्छा हो सकता है. सब कुछ पॉसिबल है. The biggest mistake what we have seen is people don't do financial planning. Second, people chase returns. Today we are seeing the favorite asset class for people is silver. Okay, thankfully silver थोड़ा करेक्ट हो गया, तो अभी मॉडरेट रिटर्न्स चेज कर रहे हैं. बट एक महीना पहले सबको, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सिल्वर में नहीं डालना था. सरप्राइजिंग बात, यस 3 साल में सिल्वर ने रिटर्न बहुत दिए, बट बहुत कम लोग की मेमोरी में उनको पता होगा कि 8 साल सिल्वर ने रिटर्न दिए ही नहीं थे. तो जब नहीं दिए थे तब किसी ने पूछा नहीं, बट आज जब रिटर्न्स बन गए तो आज सब सिल्वर की तरफ भाग रहे थे. I'm not saying सिल्वर अच्छा है या खराब है, बस एक ह्यूमन बिहेवियर है कि लोग रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, प्रोसेस के पीछे नहीं भागते. ओके, तो सेकंड पॉइंट इज इन्वेस्टिंग इन वेरियस एसेट क्लासेस. एंड ब्रॉडली मुझे लगता है 4 ही अच्छे एसेट क्लास है. रियल एस्टेट, रहने के लिए घर सबको चाहिए. फिक्स्ड इनकम जो सेफ्टी देता है. गोल्ड इज अ वेरी गुड कमोडिटी, जो मेरे हिसाब से फिजिकल फॉर्म से आज गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आना चाहिए. And last but not the least, in fact I should have said this first, is about equity mutual fund, a core portfolio, because wealth यही create करेगा. 4s and 6s यही हैं, बाकी support actors हैं जो help करेंगे इसको लंबे समय में wealth create करने के. And that's what we always tell the clients, please do asset allocation and mix various asset classes, जो काफी लोग नहीं करते. और third biggest mistake जिसके बारे में हमने पहले बात की, बिकॉज ऑफ दिस परपेचुअल नॉइज कि मार्केट गिर जाएगी, क्रैश हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, सरकार बदल जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है, एआई जॉब्स ले लेगा, दुनिया में सब कुछ ये हो जाएगा. तो द एंड ऑफ द वर्ल्ड स्टोरी इज द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी. इन सब नॉइज को इग्नोर करना
और लंबे समय तक सोचना, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और पेशेंट रहना. प्रॉब्लम क्या है? पेशेंस की हमने बात ही नहीं की. Exactly. द बिगेस्ट स्किल इन लाइफ Is इज, patience. यस IQ इज इंपॉर्टेंट, बट बीइंग पेशेंट, बीइंग डिसिप्लिन. बट प्रॉब्लम यह है कि पेशेंस की डिग्री नहीं होती है. हाँ. पीपल थिंक पेशेंस क्या होता है. Correct. पेशेंस, डिसिप्लिन, डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग, जो हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डूइंग नथिंग एंड बीइंग पेशेंट is a super skill which differentiates between an average investor and a very good investor. Yeah. So I think अगर ये skills किसी के पास हैं और उस पर मेहनत करेगा या करेंगे, तो I'm sure those families will be able to achieve their financial goals. So actually, sir summarized it really well. So first he said, don't just focus on the returns, but also focus on your goals, basically. So your returns should be linked to your goals. So first do your financial planning, do your goal setting, and invest based on your goals. So that is one thing. Second, he said that you should have patience so that your compounding happens and your long-term wealth gets created. And third is, sir, one another interesting question before like I move on to the next. People always keep on searching this best performing fund, and they keep on churning like this on 1 year basis. They say this is the best performing fund. Let's put that our money into over there, and they keep on churning between that. Right. So how do you resist them from doing that, and what is the drawback of doing that? Right. See, मतलब I give you an example through running. Okay, let's imagine एक मैराथन रनर, उसका पूरा फोकस यही कि मुझे बेस्ट शू ढूंढना है, एंड इज नॉट फोकसिंग ऑन रनिंग इटसेल्फ. ओके, मैथमेटिकली आपको देखना है कि पूरी कंट्री में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं. देयर आर मेनी AMCs आउट देयर, एंड एवरी AMC हैज गॉट वेरियस कैटेगरी ऑफ फंड्स, बिकॉज सेबी ने बहुत सारी कैटेगरीज बनाई हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, एंड द लिस्ट गोज लॉन्ग. उस पर भी हाइब्रिड फंड्स भी आ जाते हैं जहाँ पे इक्विटी, फिक्स्ड इनकम. सो ऑब्वियसली एवरी AMC is different. There are many category of funds, and obviously they will all give different kind of returns based on the risk and return. The problem is statistically कोई ना कोई अच्छा कर ही रहा होगा. Okay? The point is, it is not about finding the best fund, because दुनिया में कोई best fund होता ही नहीं है. Aim ये होना चाहिए कि how do I become a best investor? And the point is, you have to just pick up few good funds which match your risk appetite. वो फंड्स जो आपके लॉजिक के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं. और दुनिया में ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो हर साल बेस्ट रहेगा. इनफैक्ट ये एक मिथिकल फंड होगा जो हर साल बेस्ट हो रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. इनफैक्ट मैं आई गो अ स्टेप फॉरवर्ड, दुनिया में एक कोई ऐसा फंड भी नहीं है जो हर साल बेंचमार्क को बीट भी करेगा. इनफैक्ट दुनिया में, इनफैक्ट जो वॉरेन बफेट के बारे में हम काफी बात करते हैं, वॉरेन बफेट ऑल्सो अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम. सो जिसको हम बहुत अच्छा फंड मैनेजर मानते हैं, वो भी कभी ना कभी बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म करता है. द क्वेश्चन इज, based on your goals, based on your risk appetite, you have to build a portfolio of good mutual funds in your portfolio, and then stick to them and change them only if there is something which is very drastic which is there. Maybe उसका risk profile change हो रहा है, या maybe there are certain parameters which they can discuss with their advisor, okay, कि क्या changes करना चाहूँ. But otherwise, if somebody keeps on chasing the best fund, in fact they will do self harm, because जो best fund आज लग रहा है, वो तो वही बात होगी, मैं गाड़ी आगे चला रहा हूँ बट रेयर व्यू मेरे देख के डिसाइड करो, बिकॉज उसके रिटर्न्स तो बच चुके हैं. The past returns belong to the past. वो future के returns है ही नहीं, वो illusion है. Correct. The simple thing is just pick up few good funds and stay invested. That's I think the mantra for creating returns. Yeah. So again, this is a very important insight, that just don't keep on churning your portfolio based on the last 1 year's best performing fund. So then again, there is always, I meet a lot of youngsters today, we do their financial planning or we guide them with their investments. And there's always a fight, between YOLO and fire. Right. So YOLO is you live only once. Right. So आज मैं जो कमा रहा हूँ मैं आज ही उड़ाऊंगा. Right. And fire is like I have to save for my retirement, and Right. 30 years I sit after probably without any income. Right. So how do one balance between these two? Right. देखो ये concepts बहुत, ये इंडिया बहुत तेजी से बदल रहा है, ये नेटफ्लिक्स जनरेशन है और सोच बहुत तेजी से बदल रही है.
अगर आपको याद होगा पुराने टाइम की जो पिक्चरों में मूवीज में दिखाते थे, पंडित जी बोलते थे कि 7 जन्म के लिए हाँ, आप लोग अभी पति पत्नी हो। ओके, बट आजकल के जनरेशन में कोई कहता है कोई 7 जन्म नहीं होते हैं, करेक्ट। एक ही जन्म होता है। ओके, और लाइफ में इनफैक्ट जो सपने भी होते थे पहले, लोग उसको बड़ा नॉर्मल लेते थे। अगर कुछ लाइफ में नहीं भी हो रहा है ना, बोलते कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा। बट लास्ट 15 सालों में, 20 सालों में पूरी फिलॉसफी चेंज हो गई है कंट्री की। सब बिलीव करते हैं, आपको याद होगा मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, Yeah. तो सबको वही फील होता है कि जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, जो भी करना है बस इसी जीवन में फटाफट करना है और अभी करना है। अभी कर। तो उस नेचर की वजह से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन काफी बढ़ रही है। सब लोग सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पिक एंड चूज कर रहे हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं और अभी करना चाहते हैं, और कुछ भी फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं करना चाहते। तो एक ये वो जनरेशन है जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना भूल गई है। और उसके एक अलग एक्सट्रीम है जिसको फायर बोलते हैं। ओके, जहां पे वो बहुत ज्यादा सेव कर रहे हैं और कहते हैं कि बस इतना सेव करना है, कुछ भी इंजॉय नहीं करना, 40 इयर्स तक हाँ, हमें रिटायर होना है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पूरी 20 की उम्र, 30 की उम्र और 40 तक आप कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। बट लाइफ में एक बार वो उम्र निकल जाती है ना, तो वापस नहीं आती है। लेट्स लुक बैक एट आवर इंजीनियरिंग डेज। Yeah. वो एक बार वो 4 साल निकल गए, Correct. अभी वो रिमाइंड नहीं कर सकते। वो निकल गए, वो बस्ती चली गई, वो हाँ। दोस्त चले गए। और जो चीजें, कुछ चीजें उस उम्र में ही हो सकती है, वो बाइक चलाना, वो दोस्तों के साथ घूमना, वो फॉरेन ट्रिप्स, True. वो कॉन्सर्ट में जाना, ओके, वो दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाना, ट्रेकिंग पे जाना, हाइकिंग पे जाना, उत्तराखंड जाना। तो कुछ चीजें की, हर एक चीज की एक उम्र होती है। Yeah. द आइडिया इज लाइफ में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Mhm. हम सबको ये कहते हैं कमाओ, जोड़ो, उस पैसे को ठीक से निवेश भी करो, Hmm. ठीक से उस पैसे को खर्च भी करो, और जितना है उसमें खुश भी रहो। Correct. इट इज नॉट कि सिर्फ सेव करना है या सिर्फ इन्वेस्ट करना है या सिर्फ खर्च करना है। बैलेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई अगर 40 साल तक पैसा बना भी लेता है और 40 के बाद रिटायर हो भी जाता है, बट करेगा क्या उसके बाद? कैसे? अ ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डिजाइंड, इंसान एक जगह पे खाली बैठने के लिए नहीं बना है। उसे हमेशा कोई ना कोई एक मेंटल एक्टिविटी चाहिए, True. पर्पस चाहिए, गोल चाहिए, उसको कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के साथ। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि वन शुड अर्न। देखो ये फिलोसफीज ना, हम काफी वेस्टर्न फिलोसफीज पढ़ रहे हैं, ओके, वहां की किताबें पढ़ रहे हैं। समझना है कि उनका जीडीपी पर कैपिटा अलग है। Hmm. यूएस का जीडीपी पर कैपिटा $85,000 के ऊपर है। यूरोप में मोस्ट कंट्रीज का जीडीपी पर कैपिटा 50,000 के ऊपर है। वो अमीर देश है। वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, हमारा जीडीपी पर कैपिटा $3,000 टच नहीं हुआ है। पहले हमको अपना पैरों पे खड़ा होना है, पैसे कमाने हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करनी, और ये फिलॉसफी की बातें फिर बाद में आ रही थी। Yeah. सो मेरा पॉइंट सिंपल है, दीज आर गुड थिंग्स, बट पॉइंट इज Balance. पैसों के प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होंगे। कमाने पे फोकस करो, सेविंग पे फोकस करो, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, इंजॉयमेंट पे भी फोकस करो, Yeah. एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So maybe like sir said, you need to divide your income, and this is for your investment, this is for enjoying Saving. life, savings, everything. So And we need a it balanced can't, life. yeah, exactly. It can't be only savings, or it can't be only just spending. Yes, Yeah. So you yes. need to divide your income. Absolutely. And again, the first point, you need to plan it well. Without planning, everything is a failure. Yeah. So coming to the next point, sir, like, we all say that compounding is the eighth wonder of the world. But when today's, especially the new generation, they are so restless, as well instant gratification. And lot of tips are available today on Instagram or social media, SEBI is under them, whatever. So, but they need instant returns, like, and that is why people go and trade in FNO. So how do you channelize your mind for this compounding, where you have to wait for a few years to see the actual growth? And what is that exactly compounding? मतलब आप एक सरल भाषा में कंपाउंडिंग से क्या हो सकता है, Right. इसका आप अगर हमारे निवेशकों को बता सके तो बहुत अच्छा होगा। राइट। सबसे पहले जो मेरे फेवरेट इन्वेस्टर रहे हैं, उनका नाम है चार्ली मंगर। उन्होंने बहुत प्यारी लाइन बोली है कि टेल मी वेयर आई विल डाई एंड आई विल नॉट गो ओवर देयर। हाँ। कि मुझे बता दो मैं मरने कहाँ वाला हूं और मैं वहां पे कभी नहीं जाऊंगा।
उनमें से एक जगह पे जहां पे मेरे हिसाब से मरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जिसको एफएनओ बोलते हैं। सेबी की रिपोर्ट ही है, जो सेबी हर साल डेटा के साथ ओके पब्लिश करती है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू लुक एट दैट सेबी रिपोर्ट। अगर आपको वो रिपोर्ट बड़ी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आज एआई के जमाने में चैट जीपीटी में डाल के तुमसे पूछिए, समझा दी जाएगी मुझे रिपोर्ट। बॉटम लाइन ये है वो रिपोर्ट की कि सेबी की रिपोर्ट कहती है 90% अप्रोक्सीमेटली लोग पैसा नहीं बना Lose पाते, money, yeah. और जो बना भी रहे हैं उनका कॉर्पस कमाना बहुत कम होता है और उस पर टैक्स भी कितना भर देते हैं। द आइडिया इज वन हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स। Yeah. सट्टा और इन्वेस्टमेंट्स में फर्क क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी लोनली जॉब, इसमें रिसर्च बहुत लगती है, टाइम बहुत लगता है, एनर्जी बहुत लगती है और मेहनत बहुत लगती है, एंड यू हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर डूइंग दैट। उसके लिए पढ़ाई काफी लगती है। एंड मोस्ट इन्वेस्टर्स अनफॉर्चुनेटली ना उनके पास नॉलेज है, ना पढ़ाई का, ना टाइम है, ना एनर्जी है। टिप्स देना तो सबसे आसान चीज है, व्हाट्सएप पे कह दो कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बोलने में क्या जाता है। Correct. और दुनिया का असूल है, जिसको सबसे कम पता होता है ना, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट वही होता है। द आइडिया इज टुडे वी हैव अमेजिंग म्यूचुअल फंड, जहां पे एंड इट्स एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट Yes, प्रोडक्ट्स जो सेबी absolutely. मैनेज करती है, रेगुलेट करती है, जहां पे एक फंड मैनेजर और उनकी पूरी टीम है, रिसर्च एनालिस्ट के, जो मिलके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा होता है, बहुत सारी स्टॉक्स में पैसा होता है, वेल रिसर्च के साथ, और बहुत अच्छी कोशिश करते हैं कि लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करे। वेल्थ क्रिएशन का मतलब महंगाई को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। द आइडिया इज जब म्यूचुअल फंड्स आपको लंबे समय पे एक्सपर्ट्स आपका पैसा मैनेज कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट व्हीकल टू क्रिएट वेल्थ। मेरा तो हमेशा ये फिलॉसफी रहा है कि डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, एक अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ। When mutual funds are doing a phenomenal job, let them manage your equity portfolio also, fixed income portfolio also. कुछ जगहों पे गोल्ड भी उनको ही मैनेज करने दीजिए, और रियल एस्टेट तो एनी विच वेज पीपल बाय The house. टिपिकली एंड हाउस ओवर देयर। सो मेरे हिसाब से कीपिंग इट सिंपल इज डिफिकल्ट, बट सिंप्लिसिटी से ही लंबे समय पे वेल्थ क्रिएट होती है। एंड आई अंडरस्टैंड यंग पीपल उस समय प्रकृति ने बनाए उस तरीके से कि एक्साइटमेंट चाहिए होती है। वो जो थॉट होता है Correct. कि रातों रात अमीर बनना है, जल्द से जल्द पैसा बनाना है, थोड़ा शो ऑफ भी करना है कि मैंने बिटकॉइन में डाल दिया, क्रिप्टो में डाला। ओके आजकल एनएफटी की कोई बात नहीं कर रहा, थैंकफुली। एक Yeah. टाइम पे 2 साल पहले 3 I साल agree. पहले वो एनएफटीज की बात भी कर रहे थे। Yes. एनीथिंग which sounds cool, Yeah, trending. trending. Yeah. I do FNO, I do stocks, I do micro cap stocks, anything which is trendy, which make them feel cool. Okay, वो बोलने की कोशिश करते हैं, बट आइडियली उससे सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है, उससे वेल्थ Wealth क्रिएट create नहीं होती है। हमें सिंपल चीजें करनी है, बेसिक चीजें करनी है, और हमेशा याद रखना है सिंप्लिसिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन ही वेल्थ क्रिएट करेगा। बाकी चीजों से सिर्फ एक्साइटमेंट मिलेगी। Correct. So I guess it is very well summarized, like these three things are required to create a long-term wealth. राइट Now, sir, coming back to our last question and again focusing on the current scenario, Warren Buffett always says that you should be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. राइट So I guess this is the time to be greedy when entire world is under chaos. I said maybe it's AI or Right. it's geopolitical tensions. Right. So what one last message you would give from a current context to Right. all the investors and how this opportunity can be grabbed? श्योर। इक्विटी की जर्नी, हिस्ट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में गुजरे वक्त को कल बोलते हैं, आने वाले वक्त को भी कल बोला जाता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो हाउ द फ्यूचर विल लुक लाइक, विच इज आने वाला कल। वो लिखा है एक्चुअली, गुजरे हुए कल में पूरी स्टोरी लिखी हुई है। When we look at the past 15, 20, 25, 30, 40 years of the journey, we realize that there are good times जब मार्केट अच्छा करती है, there are bad times जब मार्केट डाउन जाती है, और बोरिंग टाइम जब कुछ साल मार्केट रिटर्न नहीं देती है। तो ये प्रकृति, ये दैट्स अ नेचर ऑफ इक्विटी मार्केट। लास्ट 18 महीने से मैं कहूंगा सितंबर 2024 से लेके अभी तक, इट्स ऑलमोस्ट बीन 18 months, markets have been almost flat.
वो थोड़ी ऊपर गई एंड नीचे करके एंड एंड दे हैव बीन ऑलमोस्ट बीन फ्लैट. ओके, सो थोड़ा सा हमने देखा है पीपल हैव स्लाइटली स्टार्टेड लूजिंग पेशेंस. मेरा पॉइंट सिंपल है, मार्केट के जो रिटर्न्स होते हैं उसमें मार्केट हमें समय समय पे हमारा पेशेंस टेस्ट करती है. कभी पेशेंस टेस्ट करती है जब मार्केट में डाउनफॉल आता है और आपको रियलाइज होता है अरे मैंने इतना पैसा डाला, आज मार्केट थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है, रिटर्न्स मेरे नेगेटिव हैं. वो एक पेशेंस टेस्ट होता है. और कभी कभी पेशेंस ये टेस्ट होता है कि कुछ साल तक आपके रिटर्न्स नहीं बनते हैं. ऐसा नहीं है कि लास्ट 18 महीनों में कंपनीज बंद हो गई थी. Correct. ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज के अर्निंग्स नहीं हुए. ओके, इनफैक्ट आप मैं दर्शकों को बोलूंगा कि एक्चुअली आप थोड़ी रिसर्च कीजिए और देखना कि लास्ट 18 महीनों में निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप कंपनीज के अर्निंग्स अच्छे आए हैं, बट मार्केट से रिटर्न्स नहीं दिए हैं. यस, देयर आर पीरियड्स जब मार्केट रिटर्न नहीं देती है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, दैट्स वेरी नेचुरल. इनफैक्ट जब भी ये मार्केट कभी कभी ऐसे अपॉर्चुनिटी देती है जब मार्केट में गिरावट होती है या मार्केट कुछ साल रिटर्न नहीं देती है, एक्चुअली दे बिकम बेटर टाइम्स टू इन्वेस्ट. जैसे हम कभी गोल्ड में कहते हैं ना, हम गोल्ड में ही नहीं कहते मार्केट गिर गई, हम कहते हैं गोल्ड सस्ता हो गया. हाँ. तो वही अप्रोच के साथ कि चीजें सस्ती हो गई हैं, जो चीज मुझे 18 महीने पहले मिल रही थी वही भाव पे उससे सस्ते में मिल रही है. तो अगर चीज सस्ते में मिल रही है तो वही जो मेंटालिटी हम जो मॉल्स में दिखाते हैं या बाकी चीजों में दिखाते हैं, बस वो सस्ती चीज खरीद. 18 महीने बाद आज खरीदनी है. दैट्स हाउ वन शुड बी एक्यूमुलेटिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स सो दैट दे कैन क्रिएट वेल्थ फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. So I guess that's all for today's podcast, and I thank you, sir, for joining us and giving this insightful talk. And it was a pleasure hosting you. So I hope this podcast will help you being rational, taking decisions based on asset allocation and financial planning, and not going with any of the fads, etc. So thank you all for joining us. Thank you.